Hello friends, today I will take up lesson number 1 of science of ninth standard, matter in our surroundings. So, all of you have seen many things with different shapes, different sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. For example, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. Matter can be defined as something that occupies space and has mass. In other words, matter has both mass and volume. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panchatattva, air, earth, fire, sky, and water. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Now, we will take up the physical nature of matter. What does it state? It states that matter is made up of particles. So, now to understand this better, we will take up an activity. Let us take up activity 1.1. Now, what does this activity say? Take a 100 ml beaker, fill it half with water and mark the level of water. Now dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod. Now, what do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? Now, what are the answers to this? What are the observations? The first thing we observe is the salt gets dissolved in water. The particles of salt get into the spaces between particles of water. The level of water does not change as the salt particles occupy the intermolecular space between the water molecules. तो हमने क्या देखा? सॉल्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गए, पर सॉल्ट डिज़ोल्व होने के बाद लेवल ऑफ वाटर चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है? वाटर के अंदर कोई ना कोई स्पेसेस है और इन स्पेसेस का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, और उस स्पेस के बीच में वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया है. नाउ वी विल गो टू एक्टिविटी 1.2. व्हाट डू वी सी इन द एक्टिविटी ओवर हियर? वी विल टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Now take out approximately 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Now take out 10 ml of the solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? तो क्या करना है हम लोग को कि जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे घर पे गेस्ट आए और हम लोग को रसना बनाना है. हमने बनाना शुरू किया तो हमारे पास 3 ही ग्लास बने. अब हम लोग को 4 गेस्ट है और ग्लास 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? पानी डालेंगे, है ना. दिस पानी डाल कर क्या करेंगे? चौथा ग्लास बना देंगे, जो बहुत बार हम लोग करते हैं. कभी कभी उसमें शुगर कम लगती है तो कोई शुगर भी ऐड कर देता है. इस तरह से हम लोग 3 में से 4 ग्लास बना दिया. नाउ व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? दिस इज़ कॉल्ड डाइल्यूटिंग. कभी कभी डेटॉल लेके नहाने जाते हैं तो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स पानी का 2-3 ड्रॉप डेटॉल का हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी पूरा डेटॉल वाला हो जाता है. सो जो डेटॉल बॉटल के अंदर था क्या वो कैसा था? वो सैचुरेटेड था, और जो हम लोग ने पानी में डाल दिया अब क्या हो गया? कैसा सोल्यूशन बना वहाँ पर? डाइल्यूट सोल्यूशन. तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेकर पानी में मिलाएंगे. फिर उसी पानी में से 10 ml निकाल कर एक 90 ml क्लियर वाटर में डालेंगे. इस तरह से बार बार उसमें से
अल्लाह नए नए वाले 90 ml के वाटर में डालते जाएंगे। एट लास्ट हम लोग को क्या होगा, 5 से 8 बार हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, लेट अस सी व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। क्या पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर अभी भी दिख रहा है? यस, लेट अस सी। यस, what is the observation? The water is still colored but its color has faded in every dilution. कलर तो अभी भी है पर एकदम बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक हो गया है। हर बार डाइल्यूट करने के टाइम पर वो फेड हो चुका है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. This is because potassium permanganate is made up of millions of tiny particles. समझ में आया आप सब लोग को? तो millions of tiny particles होने की वजह से ये कलर चलता ही जाता है। कितना भी डाइल्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा बार डाइल्यूट कर देंगे तो हम लोग को शायद वो कलर नहीं दिखाई पड़े। जैसे डेटॉल के पानी को हम लोग और उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे, जो पानी में हमने 2-3 बूंद डेटॉल डाली थी, फिर भी उसमें से स्मेल बहुत देर तक आती रहेगी डेटॉल की। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हर वक्त वो मूव कर रहे होते हैं। इसके लिए हम लोग के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3। उसमें हम लोग क्या देखते हैं? पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get the smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. तो इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक अगरबत्ती की स्टिक लेनी है। सब ने अगरबत्ती देखी है ना? ओके, पूजा में यूज़ करते हैं, दैट वन ओनली। यस, अब उस अगरबत्ती को हम लोग को एक क्लास के कोने में रख देना है। उसको जलाना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। क्या आपको स्मेल आएगी आपकी जगह पे बैठे हुए? नेचुरली नो। कैसे स्मेल कर सकते हैं? एकदम पास जाएंगे अगरबत्ती के, तभी उसकी स्मेल आएगी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अगरबत्ती को एक मैच स्टिक से जला देंगे। अब जली हुई अगरबत्ती रख देंगे कोने में और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे क्लासरूम में। अब क्या देखते हैं? धीरे 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 5 मिनट्स के अंदर पूरे क्लास में उस अगरबत्ती की स्मेल आने लगेगी। सब लोग आंख बंद करो तो भी बता सकते हो कि मोगरा की स्मेल है या सैंडल की स्मेल है, कोई भी बता सकता है। ओके, द स्मेल गोज़ टू ईच एंड एवरी वंस नोज़ वेरी ईजली। जब जलाई नहीं थी तब किसी को स्मेल नहीं पता चली, पर जब जला दी तो हर एक जन को पता चली। बाहर जो क्लास के हैं उनको भी पता चल सकती है, जो क्लास पास में उसको भी पता चल सकता है। ऐसा क्यों हुआ? ओके, लेट अस फाइंड आउट दैट वन। In case of the lit incense stick, even if you are sitting at a distance, you get the smell. This is because the particles of matter, on gaining heat energy, start moving faster and vibrate, diffuse in all possible directions due to increased kinetic energy. तो अब क्या हुआ? जो जैसे ही हमने जलाई अगरबत्ती तो उसके ऊपर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, और जैसे ही वो पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे तो वो बहुत ही फास्ट मूव करने लगेंगे। फास्ट मूव करने के साथ साथ वो वाइब्रेट भी होने लगेंगे। जब ये दो चीज़ें होंगी तो वो जो भी स्मेल आ रही है अगरबत्ती से वो पूरे रूम में डिफ्यूज़ होने लगेगा, क्योंकि उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उस पार्टिकल्स को। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, जो अगरबत्ती की स्मेल के पार्टिकल्स हैं, उसको मिल जाएगी और वो पूरे क्लास में डिफ्यूज़ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट इज़ वाई वी गेट द स्मेल। कभी कभी आप लोग स्कूल से घर पहुंचते हो तो बाहर गेट पे से ही मम्मी को पूछ रहे, मम्मी आज छोले बनाए हैं, आज राजमा बनाया है, आज डोसा बनाया है। कैसे पता चलता है ये सब चीज़ें? आप तो किचन में गए नहीं, आपको पता नहीं है क्या बना है, पर वो चीज़ जो भी बन रही है किचन में उसकी स्मेल जो है वो पूरी घर में डिफ्यूज़ हो गई है। उसकी वजह से हमें वो अच्छी सी स्मेल इमीडिएटली पता चल जाती है। पर आपको क्या पता है एक बात? आपकी नाक है ना, योर नोज़, इट इज़ वेरी लाइक सेंसिटिव ऑर्गन। जब भी आप कचरे के ढेर के पास से जाओगे ना तो उसकी स्मेल, जो गार्बेज और जो कुछ सड़ा हुआ मटेरियल है, उसकी स्मेल आपकी नोज़ बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकती है। और साइड में एक रोज़ का गार्डन होगा और उसके तरफ से आप जाओगे तो शायद कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर रोज़ का गार्डन है, क्योंकि हमारी नाक जो है वो गंदी स्मेल्स को जल्दी से पकड़ लेती है। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4। इसमें क्या करना है हम लोग को? फिर से वही काम,
दो ग्लास लेने हैं, 2 ग्लासेस लेने हैं या 2 बीकर लेने हैं। स्कूल में होंगे तो हम बीकर ले सकते हैं, पर घर पे तो हमारे पास कांच के ग्लास हैं। लेट अस टेक 2 ग्लासेस और दोनों को पानी से फिलअप कर दो, आधा आधा फिलअप कर दो। ओके, उसके बाद पहले जो ग्लास है, ग्लास नंबर 1, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लू इंक डालेंगे। हल्के से 1-2 ड्रॉप साइड में से धीरे से ब्लू इंक, बीचम बीच नहीं डालना है, साइड में से धीरे से 1 या 2 ब्लू इंक के ड्रॉप्स डालने हैं। ओके, और दूसरे ग्लास नंबर 2 में हम लोग 1 या 2 ड्रॉप्स हनी के डालेंगे। हनी, शहद, ऑल ऑफ यू नो ना, जो मधुमक्खी बनाती है। ओके, विल पुट इट इन द सेकेंड बीकर। अब हम लोग वो दोनों ग्लासेस को एक कॉर्नर में रख देंगे, पहले से ही कॉर्नर में ही रखेंगे उसको, और उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? तो क्या पूछ रहा है, कितनी देर में जो इंक का ड्रॉप है वो पूरे पानी में मिलकर पानी को ब्लू बना देगा। और उसी तरह से दूसरे वाले ग्लास नंबर 2 में हनी, कितनी देर में वो हनी पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा, वो हमको देखना है। तो हम लोग ने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, द बीकर इन विच इंक वॉज एडेड, जो इंक ड्रॉप्स थे वो 5 या 10 मिनट में पूरा डिफ्यूज़ हो जाएगा। इंक हर एक पार्टिकल ऑफ वाटर में मिक्स होके, डिफ्यूज़ होके पूरा पानी एक हल्का सा नीला कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। 5 या 10 मिनट में ही हो जाएगा ये काम। अब हनी का ग्लास देखेंगे तो क्या होगा, वो हनी तो नीचे ही वहीं पर पड़ा हुआ है, वो बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो रहा है, और वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो पूरा पानी में वो हनी डिफ्यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग ने उसको किसी चम्मच से तो उसको मिलाया नहीं है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डिफ्यूजन। व्हाट दिस एक्टिविटी शोज अस, जो डेंस लिक्विड्स हैं, जो विस्कस लिक्विड है या जो डेंस लिक्विड्स हैं, दे टेक मोर टाइम फॉर डिफ्यूजन कंपेयर टू द लिक्विड्स विच आर नॉट विस्कस और विच आर नॉट डेंस। नेचुरली अगर हम लोग एक ड्रॉपर में हनी लें और एक ड्रॉपर में इंक लें और हम ड्रॉप्स डालें तो फटाफट कौन सा ड्रॉप गिर जाएगा, नेचुरली इंक का ड्रॉप गिरेगा। हनी का ड्रॉप में गिरने में भी टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत डेंस है। ओके, so this is the thing how we come to find out about the density of matter now. Now let us go to activity 1.5. 1.5 एक्टिविटी में भी एक हम लोग अब फिर से 2 ग्लास लेने हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे, एक में गर्म पानी डालेंगे और दूसरे में ठंडा पानी डालेंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद गर्म पानी और ठंडा पानी डालने के बाद अब हम लोग उस पानी के अंदर फिर से पोटेशियम परमैंगनेट, वापस होली वाला जो कलर था केमिकल, याद आया? ओके, या तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक केमिकल है जो ब्लूइश इन कलर होता है। ओके, दोनों में से कोई भी एक केमिकल हम लोग लेंगे और हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं इस बार। ओके, कॉपर सल्फेट के 2-3 क्रिस्टल्स पानी में, गर्म पानी में डाल देंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर से 2-3 क्रिस्टल्स ठंडे पानी में डाल देंगे। फिर इस बार भी हम लोग चम्मच से उसको नहीं मिलाएंगे, क्रिस्टल्स को नीचे सेटल होने देंगे बॉटम में। Now, what do you observe just above the solid crystals in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो देखो अब फिगर में क्या देख रहे हैं हम लोग, जो गर्म पानी था, जैसे हमने दोनों में क्रिस्टल्स डाले, जो गर्म पानी में जो क्रिस्टल्स डाले थे वो जल्दी से इंटरमिंगल हो जा रहे हैं, जल्दी से पानी में मिक्स हो रहे हैं, फास्ट रेट में मिक्स हो रहे हैं। और थोड़ी देर के अंदर ही, मिनट्स के अंदर, थोड़े मिनट्स के अंदर ही हम लोगों ने क्या देखा, पूरा कॉपर सल्फेट पानी में डिज़ोल्व हो चुका है और वो अच्छी से ब्लूइश हो गया वाटर। जबकि आप कोल्ड वाटर वाले में चलते हैं ग्लास की तरफ, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत ही धीरे से चल रहा है वो काम। हम लोग देख भी नहीं सकते कॉपर सल्फेट को मिक्स होते हुए, दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, वो चुपचाप वो क्रिस्टल्स नीचे ही पड़े हुए हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज सो स्लो इन कोल्ड वाटर, जबकि हॉट वाटर में यही रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट हो गया। इससे हम लोग का कौन सा कंक्लूजन आता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। सो वी कैन से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड, दिस इज एन एक्टिविटी विच सेज हाउ द diffusion takes place over here.
अब हम लोग क्या करेंगे? So we can say in all these things what is happening here? Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So we can say with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. Now what is the next part? Let us see. Particles of matter attract each other. ऐसा कहते हैं कि एक पार्टिकल ऑफ मैटर दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में। लेट अस सी द 1.6 एक्टिविटी। उसमें हम लोग को क्या करना है? लेट अस सी देयर। ओके 1.7 में चलते हैं। 1.6 तो सिंपल है, वो आप लोग अपने आप पढ़ लेना। इट इज़ जस्ट अबाउट होल्डिंग हैंड्स। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं 1.7 पर। 1.7 एक्टिविटी में क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले हम लोग लेंगे कि आयरन नेल। Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try baking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? तो अब हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास, एक आयरन का नेल है, लोखंड का नेल, चौक, सबने चौक देखी हुई है, और एक रबर बैंड। ओके, ये तीन चीज़ें हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे तोड़ेंगे? या तो हैमर से ज़ोर ज़ोर से मार कर, या तो कट करके, या तो खींच खींच के, स्ट्रेच करके। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? सबसे ज़्यादा फोर्स किस में ज़्यादा फोर्स हम लोग को लग रहा है? आयरन नोल तोड़ने में, चौक तोड़ने में, या रबर बैंड तोड़ने में? किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है? चलो, क्या ऑब्जर्वेशन, आपको पता ही है ऑब्जर्वेशन, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। ओके, इट इज़ वेरी इजी टू कट द रबर बैंड। रबर बैंड को ज़ोर से खींचो, फटाक से 2 टुकड़े में, 4 टुकड़े में टूट जाएगी। चौक को तो उससे भी ईजी है। द चौक पीस ऑल्सो ब्रेक्स इंटू 2 पीसेज विथ हैंड, है ना। चौक तो बहुत, आप लोग ने बहुत सारे बच्चे हैं जो चौक को अच्छी से पाउडर बनाना सीखते हैं। जूते से पाउडर बनाना, हाथ से पाउडर बनाना, बहुत सारे बच्चों को आता है। ये बहुत सिंपल बात है ना। यस और नो? नाउ द आयरन नेल, क्या आयरन नेल को हम लोग खींच के तोड़ सकते हैं? क्या जूतों से रगड़ के तोड़ सकते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। दिस शोज दैट आयरन के पार्टिकल्स जो हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी टाइटली। जो सारे आयरन के पार्टिकल्स हैं वो एकदम टाइटली हेल्ड टुगेदर हैं, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जबकि द पार्टिकल्स ऑफ चॉक एंड रबर बैंड आर नॉट हेल्ड टाइटली टुगेदर, सो दे कैन बी ईजिली ब्रोकन। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड टुगेदर हैं वो ब्रेक नहीं कर सकते ईजिली, और जो ईजिली ब्रेक कर सकते हैं वो टाइटली जुड़े हुए नहीं हैं। सो दिस इज़ द अनदर ऑब्जर्वेशन, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो टाइटली जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में होता है। लेट अस सी द नेक्स्ट एक्टिविटी हियर। ये पूरा लेसन एक्टिविटी में समझाया हुआ, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ओपन अ वाटर टैप, पानी का नल खोल लो घर पे, और फिर अपने हाथ से जो पानी आ रहा है उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, उसके स्ट्रीम को। वेर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो हम कितनी बार भी हम लोग हाथ उसके आर पार करेंगे पानी के, तो भी पानी उसी तरह से आता ही रहेगा, कभी भी वो अचानक से बंद नहीं हो जाएगा। तो क्या है ऑब्जर्वेशन इसका? One cannot cut the stream of water because the molecules of water are held by force of attraction, and hands cannot spread or cut or break this force of attraction between the molecules. तो इतना सारे पानी के जो molecules हैं उनके बीच में एक force of attraction है। उस force of attraction इतना ज़्यादा है कि कितने बार भी हम लोग अपना हाथ पैर उसमें से निकालें तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। So today I think we have done lots of things here. We have done many things here. और इसमें थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, for today I'll stop here. Thank you so much. All of you will meet in the next session. Same lesson, chapter 1. Okay. Thank you.